ठीक है. So welcome to class once again. And collaborative learning, it is a long one also, and it comes under short one also. तो ये दोनों में आ सकता है, लॉन्ग में भी एंड शॉर्ट में भी आ सकता है. ठीक है. कोलैबोरेटिव लर्निंग का जो भी फैसिलिटीज़ है हम वो दे रहे हैं. एंड डिफरेंस मैं बताऊंगी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में क्या होता है डिफरेंस, थोड़ा सा बताऊंगी बट बताऊंगी. सो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक एजुकेशनल अप्रोच है, एन एजुकेशनल अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. देखो अच्छे से ये लाइन समझो. इट इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच. इट इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच. ठीक है. अप्रोच टू व्हाट? टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ लर्नर. ग्रुप ऑफ लर्नर बहुत सारे लर्नर्स हैं working together to solve a problem. Suppose this is your common problem and we working together. A, B, C, all are participants and they work in a group or group together or work together and complete the task or create a product. हम अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई टास्क कंप्लीट हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट निकल जाएगा, ऐसा ही है. लर्निंग इज नेचुरली ए सोशल एक्ट. मतलब सोसाइटी में जब भी आप रहते हो लर्निंग करते हो, तो वैसे बोला कि लर्निंग ऑल्सो ए सोशल एक्ट बिकॉज वी लर्न समथिंग अबाउट द सोसाइटी एनवायरमेंट और वी लर्न फ्रॉम वन अनदर ऑल्सो, ईच अदर ऑल्सो. सो इट इज़ अ सोशल एक्ट, not a natural process. It is a social act and we learn from the society, we learn from the environment and we learn from each other. So it is a social act. Other names for this learning include, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये सारे टर्म्स आए तो क्या लिखेंगे. सेम चीज़ है. It is also known as a collective learning or team learning because we work in a group. Peer teaching or learning. Peer teaching also mentioned as just like I'm your peer teacher because my age is almost same with you, and I'm also taught about something ICT, something about the other subjects, psychology, philosophy, etc. And it is easy to understand by my language, my opinion, because my opinion and your opinion is almost same. So that it is just like a peer. Peer means same age group. When same age group arrange the classes or decide something on a topic and share the knowledge about it and easily grasping or easily available the information resources to other person or other person of the society, and easily other person of the society gripping it or taking it, that is called peer learning or peer teaching. Learning communities क्या होते हैं? We are in learning communities. When we learn from the communities, different rituals, different festivals, different things, different societal rules, norms, etc., then it is called learning communities. When we group together and learn from the society or the communities, it is called learning communities. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. बेसिक एजम्पशंस क्या आते हैं हमारे माइंड में, सडनली आता है ना कि ये है क्या. सो फर्स्ट वन, to be effective there should be both group goals and individual accountability. जो मैं हाईलाइट करी उसी पॉइंट को थोड़ा सा नोटिस करना. ग्रुप गोल, वी हैव group goal, that means we work on a same topic, we have a common goal. And individual accountability, that means we work on a same topic and we have a common goal also, but in this process we also prefer individual efforts और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो मैंशन. मतलब जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में भी सोचेंगे, उनका एफर्ट्स भी यहाँ पे एडिशन होगा. आप मैं सब मिलके काम कर रहे हैं, मेरा एफर्ट्स भी है, आपका एफर्ट्स भी है, सबका एफर्ट्स के बारे में सबको हम अकाउंट करेंगे कि हाँ इसका भी वैल्यू है, उसका भी वैल्यू है, उसका भी वैल्यू है, इसको हम ऐड कर रहे हैं. अच्छा बताओ मैथ्स में इस टाइप के. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इंश्योर्स दैट एवरी ग्रुप मेंबर हैज़ लर्न समथिंग. समझ पा रहे हो? जितने मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे, जितना पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रहेंगे, सबको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ सीख के ही जाएंगे. ठीक है. ईच मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम कंसेप्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है. सारे मेंबर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सम कंसेप्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए. एंड एवरी ग्रुप मेंबर विल लर्न देयर असाइंड कंसेप्ट. देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया, सपोज दिस इज आवर कंसेप्ट और दिस इज आवर गोल, वट एवर वी लर्न फ्रॉम इट वो हमें स्पेसिफाइड करेगा बाद में, बट यहाँ पे मैंने एक कॉमन टास्क दिया. ये कॉमन टास्क सब प्रेफर करेंगे और एक साथ करेंगे. जब एक साथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं पार्ट वाइज. ठीक है. और ईच पार्ट को असाइन किया जाएगा डिफरेंट पर्सन को.
असाइन करेंगे, उस बेसिस पे ये चलेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी विल टेक बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन गोल एंड कॉमन एफर्ट्स इज नीडेड एंड एडिशन बेसिस पे सब कुछ चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी ग्रुप मेंबर विल लर्न देयर असाइन कंसेप्ट. जो उनको असाइन किया गया वहाँ से सीखेगा एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग और टीचिंग दिस टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. मैंने सीख लिया ना, अभी मैं आपको दूंगी, आप सीखोगे, आप सीखने के बाद किसी और को दोगे, वो सीखेगा, ऐसा चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये छोटा सा एक डायग्राम अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो. और इंटरेस्टिंग के लिए मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम ढूंढते रहती हूँ, देते रहती हूँ आपको. जब हम लोग कॉमन गोल पे काम करते हैं, व्हेन वी हैव ए कॉमन गोल और कॉमन टास्क, सो वी हैव टू शेयर आवर आइडियाज़, collaboration, we help to each other, or we have to share something about concept to each other. Discussion must be needed, एक needed point पे है. community भी involved होगा. brainstorming that is the ideas का तूफान. जब हम एक साथ मिलके कोई काम करेंगे ना, जैसे हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम लोग सब एक साथ मिलके काम करें, बिकॉज हम लोग एक ही लाइन पे है और हम लोग मिल के काम करें. कहीं पे कोई स्कूल में मिल गए, कॉलेज में मिल गए, या कहीं पे भी मिल गए, एक साथ काम करेंगे. सो क्या होगा, आप मुझे कुछ बता दोगे, मैं आपको कुछ बता दूंगी. आप एक ही टॉपिक पे दोनों मिल के काम कर रहे, तो मैं कुछ आइडिया दूंगी, आप कुछ आइडिया देंगे, तो ये जुड़ के और एक नया आइडिया और न्यू आइडिया जनरेट होगा. इंटरेक्शन मस्ट बी नीडेड. इंटरेक्शन होना चाहिए. मैं आपको फेस करूँगी, इंटरेक्ट करूँगी, आपसे बातें करूँगी, आप भी मुझसे बातें करेंगे. अगर हम लोग कोई भी जॉब या प्रोफेशन वाइज गुस्सा दिखाते, वहाँ पे बात नहीं करते, तो ये कॉमन टास्क कभी कंप्लीट नहीं होता. सो व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी, व्हेन वी वर्क ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक वर्क, so we must needed a calm environment with a particular basic norms to adjust in the society with a group. पर्टिकुलरली हमें सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेक्शन, प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ेंगे. एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स. ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स है. अब देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, ये इंक्लूड क्या करता है, स्टूडेंट टीचिंग वन अनदर. देखो क्या बोल रहा है, ये कोऑपरेटिव नहीं है, कोलैबोरेटिव है. स्टूडेंट टीचिंग वन अनदर, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझे पढ़ाएंगे, सारे हम स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट टीचिंग द टीचर. देखो यहाँ पे समझो पॉइंट क्या बोल रहा है. टीचर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो स्टूडेंट को कुछ बताता है, एक्सप्लेन करता है. अभी अगर स्टूडेंट को कुछ नया पता चला, तो वो क्या करेगा, टीचर को एक्सप्लेन करेगा. तो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि टीचर उससे भी सीखता है. मैं आप लोगों से कुछ सीख सकती हूँ, मे बी आपके पास अगर कुछ चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे कभी सिखा दो, हो गया. तो ये स्टूडेंट टीचिंग द टीचर, एंड ऑफ कोर्स द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट, ये भी होगा. स्टूडेंट्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर्स लर्निंग एज वेल एज देयर ओन. मतलब मैं अपने पढ़ाई के लिए जितना, लर्निंग के लिए जितना डेडिकेटेड हूँ, एफर्ट दूंगी, उतना ही आपके लिए भी दूंगी, आपके लिए भी रहेगा. मतलब आपका लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, मेरा लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का चलेगा, बिकॉज हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं. दैट रीचिंग द गोल इम्प्लाइज दैट द स्टूडेंट्स हैव हेल्प्ड ईच अदर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. अगर हम लोग मिलजुल के एक ही गोल तक पहुंच जाते हैं, तो समझ लेना उस बच्चे ने उस बच्चे को हेल्प किया, ए बी को हेल्प किया, एंड बी भी गोल को पहुंच रहा है, ए भी गोल को पहुंच गया. एम्स एट गेटिंग द स्टूडेंट टू टेक ऑलमोस्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्किंग टुगेदर. देखो सारे स्टूडेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक साथ मिल के काम करेंगे. बिल्डिंग नॉलेज टुगेदर, एक साथ नॉलेज बनाएंगे. चेंजिंग एंड इवॉल्विंग टुगेदर, हम एक साथ बिल्डअप भी होंगे, इवॉल्व भी होंगे, इम्प्रूव भी करेंगे. ये पॉइंट्स हैं, ठीक है. ये कुछ प्रिंसिपल्स का दिया. नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में और एक प्रिंसिपल्स का और भी पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है. प्रिंसिपल्स ये कुछ है, पार्टिसिपेशन, प्रिपरेशन. ये पिक्चर थोड़ा ब्लर मिला, क्लियर पिक्चर नहीं मिला मुझे, ठीक है. द बेसिस ऑफ बोथ कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब निर्माणकारी, मतलब बनावटी, तो जो बनता है, बनाया जाता है. सो दोनों ही जो कंसेप्ट है ना, मैंने बोला था ना, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी. तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव दोनों ही सेम पॉइंट पे चल रहा है. कोऑपरेशन में भी जो चाहिए, कोलैबोरेटिव में भी सेम चाहिए. बट कोलैबोरेटिव में स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि ग्रुप में उनको कैसे काम करना है. कोऑपरेटिव में टीचर और जो मतलब बोल सकते हो एक्सपीरियंस्ड वन है, वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, ठीक है. दोनों में ही हमें एक ही चीज़ करना रहता है, बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है, बच्चों को तैयार करना है, रेडी टू डू समथिंग, कुछ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी उनके अंदर बिल्डअप करना है. लर्नर्स डू नॉट पैसिवली रिसीव नॉलेज फ्रॉम दिस टीचर्स. यहाँ पे सोचो,
कोलैबोरेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, लर्नर्स कभी भी पैसिवली नहीं समझेगा। पैसिवली जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसको नहीं समझेगा। टीचिंग बिकम्स ए ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। यहाँ पे जो टीचिंग होगा, टीचिंग का जो ट्रांजेक्शन मतलब समझ रहे हो, इंस्ट्रक्शन आदान प्रदान या देना लेना। मैं आपको दे रही हूँ, आप ले रहे हो, आप मुझे कुछ दोगे, मैं लूँगी। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। स्टेक होल्डर्स मतलब जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गया, कम्युनिटी हो गया। दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग शिफ्ट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग टू द स्टूडेंट इन द रोल ऑफ ए रिसर्चर। देखो, कोलैबोरेटिव लर्निंग ने क्या किया, टीचर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं रखा। उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग बच्चों पे दे दिया। एंड बच्चे यहाँ पे कैसे काम करें, रिसर्चर जैसा काम करें। वो खुद से ही खुद को डायरेक्ट करेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं। वो लर्न करेंगे, रिसर्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू वर्क towards a collaborative learning approach, the teacher must fully understand the students' preferred learning style. अभी देखो, अगर मुझे collaborative learning approach के साथ वर्क करना है तो एक टीचर को क्या करना पड़ेगा, फुल्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक स्टूडेंट कौन सा लर्निंग स्टाइल को प्रिफर कर रहा है, स्टूडेंट का कंसेप्ट क्या है, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है और किस स्टाइल में पढ़ना चाहता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल मतलब बोल सकते प्रिंसिपल्स में क्या क्या नीड होता है, स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स में क्या क्या नीड होगा। बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी, प्रिपरेशन फुल होगा, कोलैबोरेशन में मिलजुल के करेंगे। पंचुअलिटी होना चाहिए बच्चों में। पंचुअलिटी मीन्स ओनली टाइम बेसिस में पंचुअलिटी नहीं, स्किल्स भी डेवलपमेंट सही समय पे होना चाहिए हर एक बच्चे का, इंटरपर्सनल स्किल। एंड देन रेस्पेक्ट भी होना चाहिए हर एक पर्सन का यूनिकनेस के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो मैं आपको बताऊंगी आप मुझे देंगे, सेम टॉपिक पे शेयरिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए। कमिटमेंट, कोलैबोरेशन में एक ही चीज़ है, मैं बीच रास्ते से आपको छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा कमिटमेंट है, मैं एंड तक रहूँगी, रिजल्ट जब तक नहीं आता, ये मेरा प्रोडक्ट तक रहेगा। अभी ये रोल ऑफ लर्नर्स, डायग्राम्स का वेराइटी देखो, डायग्राम्स चेंज हो रहा है और आपको इस स्टाइल के डायग्राम्स भी थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए, तो पेजेस कवर होंगे जल्दी और लिखने में ईजी रहेगा। रोल ऑफ द लर्नर इन कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसा रहता है, द लर्नर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू, क्या क्या करने में लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, प्रेजेंट आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़, अगर रॉन्ग आइडियाज़ है उसको हम अवॉइड करेंगे। एक्सचेंज डाइवर्स बिलीव, मेरे पास कुछ बिलीफ है, मैं कुछ चीज़ को जानती हूँ, कुछ कम्युनिटी से मैंने सीखा है, आपने भी सीखा है, तो एक्सचेंज करेंगे। क्वेश्चन अदर कंसेप्चुअल वर्क्स, जितना भी फ्रेमवर्क्स है उसके ऊपर हम क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये सही है कि नहीं, ये गलत है, इसको करना चाहिए। एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, एक्टिवली हम कोई काम में एंगेज होंगे। एंड कन्वर्स विद द पीयर्स, पीयर्स के साथ ही हमें मिल के चलना है। ठीक है। सो क्या हम इतना क्लियर है कैसे चेंज किया गया है, ढूंढ के इस बार पिक्चर्स सारे लगाई हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ आए क्या, आप लोग लिखो, उस टाइप का लिखो। कंसेप्ट हमारे पास बहुत होते हैं, हम लिख भी सकते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन स्टाइल ही सबको इम्पोर्टेंस देगा। प्रेजेंटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आपका मार्क्स आएंगे। ठीक है। एक पर्सन को कंसेप्ट आता है, प्रेजेंट करना नहीं आता, देखना मार्क्स डाउन होते हैं। वो एक आध किस्मत वाला बच्चा होता है कि उसको मार्क्स मिल जाता है, और हर टाइम लक भी काम नहीं आएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन सीखो, जैसे पेजेस कवर करके आओ विथ कंसेप्ट। ठीक है। वहाँ पे रिपीटेशन होने से भी चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे समझो। तो रोल ऑफ द टीचर, देखो हमने स्टूडेंट का रोल पढ़ा, अभी रोल ऑफ द टीचर क्या है, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए कोलैबोरेटिव लर्निंग में। सो इन कोलैबोरेटिव लर्निंग देयर इज़ नो क्लोज मॉनिटरिंग बाय टीचर। देखो आप लोग कोलैबोरेटिव में मिलजुल के काम करो, मैं यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखूँगी, अगर पार्टिसिपेट करती भी हूँ तो मेरा क्लोजली मॉनिटरिंग नहीं रहेगा, मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करूँगी, ऊपर से ही बस चेक करूँगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। इफ़ आप लोग पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा आएगा कोलैबोरेटिव वर्क से, दैट मीन्स आप लोग सेटिस्फाइड हो एंड आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। अगर आप नहीं कर पाए दैन मैं वहाँ पे एंटर करूँगी एंड बताऊँगी। ठीक है। टीचर एम्पावर्स द स्टूडेंट ग्रुप, देखो टीचर जैसे होता है ना, कुछ स्कूल्स में प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे अगर मिलजुल के कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कोलैबोरेटिव वर्क हो गया। स्टूडेंट बस नीड करते हैं गाइडेंस या फिर सोर्सेस जो कि टीचर प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज सारा काम स्टूडेंट खुद करेंगे। टीचर्स रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड कोचिंग, कोचर जैसा बनेगा, ये सही करो, वो गलत कर रहे हो उसको सही करो, ऐसा बस ऐसा रहना चाहिए। कोई भी वहाँ पे आंसर्स नहीं बता देंगे, या फिर आपको कोई भी हम लोग ऐसा नहीं है सारे रिसोर्सेस पूरा
लिख के सब कुछ दे दे कि हो गया, लो ये रिजल्ट तुम्हारा होना चाहिए, इसको प्रेजेंट कर दो, ऐसा नहीं है। बच्चा यहाँ पे खुद करेगा, बस आप दूर से ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में एक डायग्राम में कुछ मेंशन है, जहाँ पे टीचर डिसाइड करता है, क्योंकि हम लोग ये लर्निंग फेज में ही पढ़ रहे हैं, तो जहाँ टीचर डिसाइड करता है एवरीथिंग को एंड स्टूडेंट्स बाउंड होते करने को, वो होता है कोऑपरेटिव। कोलैबोरेटिव जहाँ पे ग्रुप में होते हुए भी जो भी लर्नर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं, वो हो गया आपका कोलैबोरेटिव, ठीक है। कोलैबोरेटिव रोल ऑफ टीचर इन कोलैबोरेटिव और भी हैं, कुछ दे रही हूँ। मेक श्योर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे पहले तो टीचर को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब जो भी काम करे उसका एक रिजल्ट आएगा ना, कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो बच्चे समझ सके कि उनको कैसे करना है और कितना करना है, वो टीचर का काम है बच्चों को समझाना। ग्रुप शुड रेगुलरली रिपोर्ट देयर प्रोग्रेस। अभी आप सब काम करें कोई टास्क पे और वर्क पे, तो आप मुझे हमेशा अपना प्रोग्रेस दिखाओगे, रेगुलरली रिपोर्ट करोगे कि मेरा मैम इतना कंप्लीट हो गया, इतना ऐसे करना है और ऐसे हम लोग ग्रुप में काम करें, इतना इतना काम सबने किया है। सो दैट इज़ द रिपोर्ट एवरी टाइम रेगुलरली आप मुझे प्रोवाइड करेंगे और टीचर को प्रोवाइड करेंगे जो आपके गाइड में है। द असेसमेंट ऑफ कोलैबोरेशन लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग कैन बी डन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन द प्रोसेस थ्रू द ग्रुप इवैल्यूएशन। देखो असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट वर्ड समझाया था, तो वैसे ही बोला कि यहाँ पे बच्चे खुद को क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस थ्रू द ग्रुप इवैल्यूएशन। इन जब ग्रुप में रह रहे हैं तो ग्रुप इवैल्यूएशन होगा, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल मार्क्स हम देने के बाद उसको एडिशन बेसिस पे भी काम को मार्क्स देंगे। तो पहले तो यहाँ पे ग्रुप को मार्क देना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअली देखा जाएगा। पीयर इवैल्यूएशन भी होगा, हम एक दूसरे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, खुद को भी आप असेस कर सकते हो। एंड स्टूडेंट शुड गिव रीज़न फॉर देयर इवैल्यूएशन, क्या इवैल्यूएट किया उन्होंने वो भी उनका रीज़न देंगे, ठीक है। वर्किंग ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो आइडियली टास्क शुड बी और टास्क शुड इनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कस। अभी जो टास्क गिवन होगा वो टास्क कैसा होना चाहिए ना, ऐसा टास्क होना चाहिए जो बच्चों को इनकरेज करे, बच्चे वहाँ पे खुद को रिफ्लेक्ट कर सके और डिस्कस कर सके। और स्टूडेंट शुड लर्न टू लिसन केयरफुली, जो बच्चे हैं वो आपको लिसन करे केयरफुली एंड उसके बाद मतलब लिसन करे, लर्न करे, उससे सीखे, कमेंट्स, ओपिनियन, सजेशंस दे, क्रिटिसिज्म भी दे, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। एंड ये टीचर्स से नहीं सीखेंगे, अपने पीयर ग्रुप से सीखेंगे। पीयर मतलब सेम एज ग्रुप जो ग्रुप में प्रेजेंट है। द कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज शुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ देगा, टू एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएट देयर आइडियाज़ टुगेदर। ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि एक साथ एनालिसिस करने को, कोई नया चीज़ प्रोड्यूस करने को, एंड इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन, दैट इज़ अ वैल्यू देने को, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड लर्निंग, बिकॉज ये आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग अभी आईसीटी में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस ये सब कुछ भी यूज़ होगा। कोई टास्क को डिज़ाइन करने में, कोई प्रेजेंटेशन बनाने में, कुछ चीज़ों को सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली कैसा चल रहा है प्रोग्रेस देखने के लिए हेल्प मिल जाएगा। और क्या है, द टास्क शुड एंश्योर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। मतलब देखो अगर हम लोग ग्रुप में काम करें और एक दूसरे के साथ झगड़ा करें तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मे बी वो टास्क अगर कंप्लीट भी हो गया तो उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हम पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट हो जाए। स्टूडेंट्स शुड नो एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इंटरेक्शन इन द ग्रुप इज लिंक्ड other in such a way that success can only be achieved by everyone contributing their part। देखो जितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ग्रुप में लिंक्ड रहेंगे और एक का सक्सेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, एट ए टाइम एक ग्रुप का सक्सेस हो रहा है। अगर ग्रुप का सक्सेस हो रहा है तो इंडिविजुअली आप भी सक्सीड कर रहे हो। असाइन ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप ए डिफरेंट रोल, सारे मेंबर्स को अपना अपना डिफरेंट रोल दिया जाएगा। द टीचर शुड रीडिस्ट्रीब्यूट, देखो आपने तो डिवाइड कर लिया सारे काम को, अभी टीचर का काम क्या है, वो सारे टास्क को अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चों के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। द टीचर शुड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोमोटिंग इंटरडिपेंडेंस। ये लाइन याद रखो, टीचर का काम क्या है, अगर कोई बच्चा बीच में ही बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसा वैसा, तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करो कि बच्चा खुद ही फील करे कि नहीं हमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड ये कॉमन ग्रुप के लिए रिवार्ड्स भी देंगे, इनकरेज करेंगे, लेबर को जो डिग्निटी होता है
उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं वर्क कर रहे हैं तो उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट के लिए कोई टास्क का। तो ईच स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस दे रही हूँ। डेवलप्ड हायर लेवल थिंकिंग स्किल बच्चों में डेवलप्ड होगा। प्रमोट स्टूडेंट टीचर फेमिलियरिटी। इंक्रीज स्टूडेंट रिटेंशन, याद रखने का कैपेसिटी बढ़ता है जब आप खुद के ही जैसे बच्चों से सीखते हो। बिल्ड सेल्फ एस्टीम इन स्टूडेंट, बच्चों के अंदर खुद से करने का, खुद का जो व्यक्तित्व है वो विकास होता है या फिर पर्सनालिटी डेवलप्ड होता है। एनहांस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन विद द लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चों का सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जब कोई काम हम करते हैं एंड सेटिस्फाइड नहीं होते तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिले। डेवलप्स ओरल कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों का ओरल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड होगा। डेवलप सोशल इंटरेक्शन स्किल एंड सिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप्ड होगा। और भी है एनहांस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, एक दूसरे को हम मैनेज करेंगे, ये यहाँ पे नहीं मेंशन है, खुद को मैनेज करने का कैपेसिटी बिल्ड होगा। ये भी एक कौशल है, खुद को कैसे आप मैनेज कर रहे हो। विदाउट शोइंग योर इमोशंस टू द अदर्स, विदाउट शोइंग योर हैप्पीनेस टू द अदर्स। समटाइम आपके कुछ चीज़ों को ना छुपा के रखना पड़ता है। जो चीज़ें पॉसिबल है सब कुछ ओपन रखो, एंड कुछ चीज़ें हैं किसी को बताया नहीं जाता। जब आप डेवलप करो वो चीज़ खुद से दिखनी चाहिए आपके काम में, ठीक है। तो वैसा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बोला जाता है। क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ एक्टिव एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, तो आपको जस्ट लाइक एक्टिव एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोरिंग करते रहो, हमेशा आपका कुछ डेवलप्ड होता रहे, ऐसा लर्निंग हो। एस्टैब्लिशेस एन एटमोसफियर ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव वाला एटमोसफियर चाहिए। डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस आना चाहिए कि मैंने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है वो मैं करूँगा, ये मेरे ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनकरेज डाइवर्जेंट अंडरस्टैंडिंग, डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट, एक पॉइंट से निकला डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स आना चाहिए। फोस्टर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखो आप और मुझ में जो रिलेशनशिप अभी क्रिएट हो रहा है, हम आप एक ही हैं, और कभी अगर फ्यूचर में भी मिलते हैं तो ऑब्वियस आप मुझे हेल्प करेंगे, मैं भी आपको हेल्प करूँगी, यही पॉइंट है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। रिड्यूस द क्लासरूम एंजाइटी, जब हम मिलकर काम करते हैं ना एंजाइटी कम हो जाता है। अभी डिसएडवांटेज में आ जाओ। सर्टेन इंडिविजुअल डू नॉट फील कंफर्टेबल पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप सेटिंग, कभी कभी ना हमें ग्रुप में काम करना पसंद नहीं आता और ग्रुप के जो रूल्स हैं वैसे मानना पसंद नहीं आता, तो वो डिस्टेंस में रहेंगे। साइनेस है, कभी कभी डर भी रहता है क्रिटिसिज्म का, इसलिए वो अलग अलग रहना स्टार्ट करते हैं। सिंस कोलैबोरेटिव लर्निंग जनरली ग्रांट्स द स्टूडेंट मोर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द फोकस ऑफ द इंस्ट्रक्शन में वेर फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स। अच्छा, मैं जो टास्क आपको दे रही हूँ, जो टास्क आपके कोर्स के बेसिस पे है, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, कंट्रोल बच्चों पे है तो सारा चीज़ कंट्रोल वो करे, तो कभी कभी टास्क से निकल के वो दूसरे चीज़ों में सर्चिंग करना, इन्फॉर्मेशन ढूंढना, उसमें फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। एज विथ एनी ग्रुप एक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हो, एज विथ एनी ग्रुप एक्टिविटी सम मेंबर्स मे कंट्रीब्यूट वाइल अदर्स डू नॉट। ऐसा होता है कि ये ग्रुप एक्टिविटीज़ है तो कुछ मेंबर्स काम करें, कुछ मेंबर्स पूरा ही चुपचाप बैठे रहते, कुछ करते नहीं हैं। एट ए डिस्टेंस दिस मे पोज इवन ए ग्रेटर प्रॉब्लम, धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है टाइम के साथ, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स एक साथ प्रेजेंट हैं एक ही रूम में और काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करे कुछ काम करे, तो उनमें झगड़ा लगना पॉसिबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम्स में रिजल्ट इफ ग्रुप मेंबर्स कैन नॉट एग्री और विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। देखो अभी एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं बट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मेरे लिए और मैं भी आपके लिए ना करूँ, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। इट कैन ऑफन बी डिफ़िकल्ट टू असेंबल ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप एट द सेम टाइम। एक साथ कोई काम आया करने के लिए सारे लोग एक साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, सेम टाइम में हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब ये डिस्टेंस लर्निंग में अगर होता। abundance of information that a group generate can prove to be difficult to compile individually। अभी देखो सपोज मेरे ग्रुप ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया बट एक साथ उसको कंपाइलिंग करना और अरेंज करने में हमें डिफ़िकल्टीज फेस हो रहा है। सो ये हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग, एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए ही ब्लॉग यूज़ किया जाता है, फील्ड ट्रिप का यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था तो उसको लिख सकते हो थोड़ा सा,
फील्ड ट्रिप लिख सकते हो। फील्ड ट्रिप क्या होता है, कहीं पे आप सडनली एक्सकर्शन गए हो या फील्ड स्टडी के लिए गए हो, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पिकनिक जैसा है और एक साथ मिल के जाते हैं कोई कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो वो मेंशन होता है। तो वन वन पैराग्राफ आप दे सकते हो यहाँ से। इतना है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.